اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نہیں دکھتا، اور قبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، سارے خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دینے جا رہے ہیں، نور حدیث چینل کا نام ہے۔ ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ دوستوں، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو آج کی، بہت عبرتناک ویڈیو آج کی ہے۔ جب اکثر ہم لوگ کسی اپنے کو جا کے قبرستان میں دفناتے ہیں، یعنی کہ جب وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو جب دفناتے ہیں تو دوستوں مردہ سب کچھ آہٹ سنتا ہے، ایک ایک چیز سنتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ مٹی ڈالتے ہیں تب بھی وہ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اس کو واپس دفنا کے آتے ہیں تب بھی مردہ قبروں کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے۔ اور جو نیک اعمال جس نے کیے ہوتے ہیں اس کو بالکل فکر نہیں ہوتی ہے۔ قبر کے اندر جب اتارا جاتا ہے تو مردے سے 3 سوال ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ قبر ایک ایسی سیڑھی ہے جو یہاں سے نکل گیا وہ ہر جگہ سے نکل گیا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ ہر جگہ پھنستا ہو جائے گا۔ قبر بہت دردناک عذاب کی بھی ہے جگہ ہے، اور جنت کا باغ بھی ہے۔ تو آئیے ہم آج جو ویڈیو سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے ویڈیو ہم لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جتنا ہو سکے شیئر کریے گا، اور اس سے عبرت بھی لیجیے گا کہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نہیں دکھتا، اور قبر کے اندر روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو مردہ ہٹانا چاہے گا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کیڑے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے اور دور کر سکے۔ آپ کا قبرستان میں جانا ہوتا ہے، یہ جو آپ کو قبریں ایک جیسی دکھتی ہے، اندر سے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں بچے کو رکھ کر دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے اس کی دائی پسلی بائی پسلی میں گھس جاتی ہے، اور بائی پسلی دائی پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ کسی نے قبر کو چکناچور کر دیا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، کسی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ قبر میں ایک اندھا سانپ ہے، جب مردے کو وہ ڈنک مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے کہیں گے کہ یہ کون صاحب ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہنے والا کہے گا ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس سے گرم لو آتی ہے، اور جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اس پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے، جو بہت ہی وحشت ناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کے گج ہوتے ہیں جو اس سے مارتے رہتے ہیں۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اگر آپ میرے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھویا ہے؟ اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوتا، ان کے احکامات پر عمل کرتا، تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتا۔ پھر مومن بندے کی قبر جو 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی پھیلا دی جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے،
तो इससे उसकी पसलियाँ इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दिया जाता है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है, तो वो फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी इजाज़त नहीं, आप आराम से सो जाए, अब आपको आपके महबूब आकर जगाएंगे। वो आराम से सो जाता है और बुरे बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम का आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और आज़ाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। आज़ाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे के गज होंगे। वो गज इतने वजनी होंगे कि सारे जिन और सारे इंसान मिलकर उठाए तो उसे उठा नहीं सकेंगे। और अगर उस गज को किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ मिट्टी बन जाए। जब वो गज फरिश्ते बुरे बंदे को मारेंगे तो वो 70 गज जमीन में धंस जाएगा। फरिश्ते फिर उसे निकालेंगे, फिर मारेंगे। ऐसे ही कयामत तक चलता रहेगा। एक फरिश्ते के हाथ में एक बहुत बड़ा वजनी पत्थर होगा। वो उसे मारेंगे तो उसका चेहरा चटनी बन जाएगा और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। फरिश्ते उस पत्थर को उठाने जाएंगे, तब उसका चेहरा फिर से सही सालिम हो जाएगा। फिर मारेंगे पत्थर। ऐसे ही कयामत तक चलता रहेगा। सांप बिच्छू अलग डस रहे होंगे। बहुत बुरा मंजर होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में काफिर पर जरूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो कयामत तक उसको डसते रहेंगे। उनके जहर का ये आलम है कि उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो जमीन बिल्कुल सब्जी ना उगाए। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर से गुजर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, इनको आज़ाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा है बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे वो बच सकते थे। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करने में पर्दा नहीं करता था। एक रिवायत में है कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीर कर आधी उस कब्र पे गाड़ दी, आधी दूसरी कब्र पे। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ऐ इंसान, तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज ने धोखे में डाला था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाई और कीड़े मकोड़े का घर हूँ? जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता और गुजरा करता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे होता है? अगर मैयत नेक होती है तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है। क्या तुझे मालूम नहीं है, ये शख्स नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों से रोका करता था? तो कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्जे में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह पाक की कुर्बे रहमत में जाएगी। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोजा, हज, जिहाद, सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब आज़ाब के फरिश्ते उनके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है, इससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं तो रोज़ा कहता है, तुम्हारे लिए इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह की खुशनुदी के लिए इसने बहुत रोजे रखे और तवील भूख प्यास बर्दाश्त की। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं कि हट जाओ, इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रजा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका कहता है, मेरे दोस्त के पास से हट जाओ। इन हाथों से कितने सदकात निकले हैं जो महज अल्लाह की रजा के लिए दिए गए और इन हाथों से निकलकर वो बारगाह इलाही में मकबूलियत के दर्जे में फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत को कहा जाता है कि तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतरीन हैं और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फर्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं। हद्दे निगाह तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है और जन्नत की एक किंदिल उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है जिससे वो कयामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में बिठाया जाता है, वो चलने वालों की कदमों की चाप को सुन रहा होता है तो उसके साथ कब्र गुफ्तगू करती है और कहती है, ऐ इंसान, तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मुझसे मेरी तंगी से, बदबू से, हैबत और कीड़ों से ना डराया गया था? अब तू मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? हजरत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मरवी है कि हर मरने वाले पर मौत के वक्त उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। वो नेकियों की तरफ टिक टिकी बांधे हुए देखता है और गुनाहों को देखने से आंखें चुराता है। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मालूम किया, मैं बहुत खामोशी के साथ कोई काम करता हूँ लेकिन लोगों को मालूम हो जाता है, इससे मुझे खुशी होती है, इस पर मुझे सवाब मिलेगा या नहीं? तो फरमाया, दोहरा अजर मिलेगा, एक छिपाने पर दूसरा जाहिर होने पर। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कयामत में निजात किस काम की वजह से होगी? तो फरमाया, अल्लाह के साथ धोखा ना करो। अर्ज किया, अल्लाह के साथ धोखा करने का क्या मतलब है? तो फरमाया, अल्लाह के हुक्म पर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करो, गैरुल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अमल करना ही अल्लाह के साथ धोखा करना है। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ तलवार की 300 ज़रब के बराबर होती है और फरमाया, मौत की शिद्दत और तकलीफ मेरी उम्मत के लिए नसीहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहुत गनीमत है, रात लंबी होती है तो वो उसमें इबादत करता है और दिन छोटा है तो रोज़ा रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कब्र मोमिन के जन्नत का बगीचा है और काफिर के लिए कब्र जहन्नम का गड्ढा है। लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो और तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात पर पानी फेर देने वाली है। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, कुछ मौत का हाल बताइए। तो फरमाया, मौत कांटेदार दरख्त की तरह है जो इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और उसका एक एक कांटा इंसान के रग व रेशे में पेवस्त हो जाए, फिर कोई ताकतवर आदमी उसको जोर से खींचे और वो दरख्त गोश्त को काटते हुए बाहर निकले। यही मौत का हाल है। किसी बुजुर्ग ने कहा, 3 चीजें किसी समझदार आदमी को नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 1, दुनिया और उसके हालात का फना होना। नंबर 2, मौत। नंबर 3, वो मुसीबतें जिससे इंसान को अमान ना मिले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि आप ताज़े मुर्दे को जिंदा करते हैं, किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। उसके मुतालबे पर आपने शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया। जब वो कब्र से उठे तो सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सफ़ेदी कैसी है? आपके ज़माने में बुढ़ापा तो था ही नहीं। तो कहा, जो मैंने आवाज़ सुनी तो ये समझा कि क़यामत आ गई। उसके खौफ से बाल सफ़ेद हो गए। मालूम किया आपका इंतकाल कब हुआ था? फरमाया 4000 साल पहले, लेकिन अभी तक मौत का जायका ख़त्म नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने मालूम किया, सबसे अफजल कौन है? फरमाया, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। अर्ज़ किया, और सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? फरमाया, मौत। मौत को सबसे ज्यादा याद करने और उसकी तैयारी करने वाला सबसे ज्यादा समझदार है। मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को 70 गज वसी कर दिया जाता है और मखमल का फर्श बिछाकर खुशबुएं बिखेर दी जाती है और कब्र को ईमान व कुरान के नूर से रोशन कर दिया जाता है और उसको दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है। अब उसको उसका महबूब ही बेदार करेगा। काफिर की कब्र कैसी होती है? काफिर की कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है और ऊंट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़ दिए जाते हैं जो उसका गोश्त खाते रहते हैं और गूंगे बहरे फरिश्ते हथौड़े से उसकी पिटाई करते रहते हैं और उस पर सुबह शाम आग भी पेश की जाती है। मौत के वक्त जिस बंदे के दिल में उम्मीद और खौफ दोनों जमा होते हैं तो अल्लाह ताला उसकी उम्मीद के मुताबिक मामला फरमाता है और खौफ को दूर फरमा देता है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत में अल्लाह की रहमत की वुसअत का यह आलम होगा कि उसको देखकर शैतान भी अपने लिए रहमत व शफाअत की तवक्को करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ लोग खैर को फैलाने वाले और शर के मिटाने वाले होते हैं और बाज़ शर के फैलाने और खैर के मिटाने वाले होते हैं। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने खैर फैलाने और शर को मिटाने वाला बनाया और शर फैलाने और खैर को मिटाने वालों के लिए हलाकत है। अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का मामला अजीब व गरीब है। गुनाह करता है, फिर मुझसे माफ़ी मांगता है, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। वो फिर गुनाह करता है और फिर माफ़ी मांगता है, मैं फिर भी माफ़ कर देता हूँ। ना वो गुनाह छोड़ता है, ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों, गवाह रहो, मैंने इसको माफ़ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब इब्लीस को ज़मीन पर उतारा तो उसने कहा, तेरी इज्जत व अज़मत की कसम, जब तक इंसान के जिस्म में जान रहेगी मैं उसे गुमराह करने की कोशिश करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत व अज़मत की कसम, हालत नज़ा से पहले पहले इंसान की तौबा कबूल करता ही रहूँगा। किसी ताबई का कौल है कि गुनहगार जब गुनाह के बाद तौबा व इस्तग़फ़ार करता और उस पर नादिम होता है तो उसकी नदामत और तौबा की वजह से उसके और भी ज़्यादा दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वो जन्नत का मुस्तहक हो जाता है। उस वक्त शैतान अफसोस करता है और कहता है, काश मैं इसको इस गुनाह की तरगीब ही ना देता तो अच्छा था, उसके इतने दर्जात तो बुलंद ना होते। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो हमने देखा कि कब्र के बहुत सख्ती होती है। कब्र के अज़ाब से जो बच गया वो पूरी हर जगह से बचता हुआ चला जाएगा। तो कोशिश करें जितना हो सके अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, नमाज़ पढ़ें। आज से अभी से इसी वक्त से फ़ौरन तौबा कर लें, गुनाहों से तौबा कर लें और नमाज की आदत डाल लें। नमाज एक ऐसी इबादत है दोस्तों जो तमाम बुराइयों से बचाती है इंसान को। नमाज बहुत अफजल इबादत है। तो नमाज़ पढ़ें, ख़ुद भी पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें, अपने घर में अपने दोस्त अपने रिश्तेदारों सबको नमाज़ पढ़ने की दावत दें। नमाज बहुत अहम इबादत है और जितना हो सके तौबा इस्तग़फ़ार किया करें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाए, अल्लाह के रसूल भी राज़ी हो जाए और हमारी दुनिया में संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो ये कुछ वीडियो थी जो जानकारी आपको देनी थी, इससे इबरत लेने और अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला जब भी इस दुनिया से हर मुसलमान को जाए कोई भी जाए तो अल्लाह ताला उसका ईमान पे ही ख़ात्मा भी खैर फरमाए और कलमाए तैयबा उसको नसीब फरमाए और तौबा इस्तग़फ़ार जितना हो सके उस टाइम भी पढ़ें, क्योंकि मौत का वक्त किसी को नहीं पता कब आएगा कब नहीं आएगा। मलकन मौत जहाँ सामने नज़र आया फिर तौबा के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। तो अभी से, क्योंकि हर इंसान को अपनी आखिरत खुद बनानी है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। तो जितना हो सके अपने अमाल को अच्छा बनाएं और अगर साहिब हैसियत खूब इशारे सवाब के लिए दूसरों मतलब आपके जो भी आपके अपने हैं उन पे इशारे सवाब करें, उनसे सदका करें, खैरात करें, जितना हो सके करें, क्योंकि यही सब काम आएगा। समझ लीजिए यही सब काम आएगा। बाकी जमा करके रख के मर के चले जाना किसी के काम नहीं आएगा। हाँ, जो भी ज़रूरी काम है वो ज़रूर करें। तो ये हमारा
रिएक्शन था। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।